There are some questions on bhakti, gyan, karma, guru, and Sri Maharaj Ji particularly. And there are some questions which are more difficult. If you will answer the questions which are valuing 500 points, then you will get 500 points. In the same way, if you are given right answer to any question which the value of which is 200 or 300, you will get the marks. And if you give the wrong answer, then it will be minus. So I will see that who gets the maximum marks and who gets the lowest marks. So in this way you will know that how much philosophy, the knowledge of philosophy you have. So now I will start, a chance is given to the men's side and then the chance will be given to the ladies' side. When your chance, you can choose any question. Like you are choosing Guru for 200. So I will ask the question which value is 200, then you have to give the answer. You can talk to each other privately, and after concerning with each other also, one person has to give answer. But if your answer is wrong, then you will not be given next chance. Your chance has gone, and you will have minus that much. And then this side will be given a chance. We will see that women win or the men in this game of Jeopardy. Now you are given the first chance to choose any category of question. Eh? Maharaj Ji 500. The question is, meaning of Nikhil Darshan Samanvayacharya. He just consolidated all the philosophies of other Jagat Gurus and gave his own version. It's not a complete answer. Give me the complete. I have given the answer to this question in my lecture. You have to give the complete answer. This is the meaning. Whatever you are saying here, it is the word meaning of Nikhil Darshan Samanvayacharya. I want to know the meaning of Nikhil Darshan Samanvayacharya. Who should be called Nikhil Darshan Samanvayacharya? Give me the answer of this question. The ladies, the chance of men has gone. माइक लो ना, इधर भी तो है माइक, एक माइक लो इधर से, एक उधर रखो. One who reconciled all the six philosophies of all the six darshan shastra and all the past Jagat Gurus and any other philosophy existing out there. So one who reconciles all of them. He was also saying the same thing. He didn't say six darshans. Okay. Zero number to both of the parties. The meaning of Nikhil Darshan Samanvayacharya means there are many philosophies. The philosophies of the Vedas, the philosophy of all the four Jagat Gurus, the philosophy of Vedant, the philosophy of Nastik Dharmacharyas, the philosophy of all the Acharya. So the one, listen to me very carefully, the one who knows all the philosophies by heart, and then he knows so well that any time he can reconcile them as well. He should have the power of reconciling them. After knowing all the philosophies,
and he can reconcile it, and he can prove that all the philosophies are correct. None of them are wrong, because all the philosophies are depicted by God Himself or those saints who are equivalent to God, the God realized soul. This is the meaning of Nikhil Darshan Samanvayachar. Now the ladies will choose the category. Hurry up. Bhakti 200. Bhakti 200. 200. What is the real meaning of seva? This is their chance first, then your chance will come. Mic लो. तत् सुखम सुखित्वम और हरि गुरु की इच्छा में ही इच्छा रखकर जो भी No, उनकी wrong. सेवा जो करते हैं हम उनकी इच्छा में इच्छा रखकर Wrong. You have chance. आज्ञा का पालन करना, Eh? आज्ञा का पालन करना, हाँ, that is right. Agya samna susahib seva. Seva means agya palan. Whatever agya is given, at whatever time, ready to do it happily. Yes, now your turn to choose. Eh? Guru 500? Guru, not Maharaj. When a guru can infuse love to a devotee, वो समय कब आता है जब गुरु प्रेम दान कर सकता है. when your antakaran is 100%. हैं? एक जने बोलो, खड़े होकर बोलो, पता तो चले कौन बोल रहा है. बोलो. अंतःकरण शुद्धि होने पर गुरु स्वरूप शक्ति के द्वारा यस, जब अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो जाए तब गुरु प्रेम दान कर सकता है, उसके पहले नहीं. नेक्स्ट तुम लोग का टर्न. प्रेम रस मदिरा है 400. प्रेम रस मदिरा का हाँ चला गया. इसमें से मिट गया प्रेम रस मदिरा. Even then I'll ask question. अभी इसको छोड़ दो, नेक्स्ट पूछोगे. वाला लैपटॉप ले आना. कोई जना. दीदी कर्म 200. यहाँ. कर्म एक मिनट, ये लैपटॉप ले आओ हमारे कमरे में से. कर्म हाउ मच? 200. What is the best kind of karma and why? कर्म कई प्रकार के होते हैं, उसमें से वो कौन सा कर्म है जो बेस्ट कर्म है और क्यों वो बेस्ट कहलाता है? कर्म योग. क्यों? क्योंकि दीदी क्योंकि तुम्हारे माइंड में आ गया नहीं अच्छे से समझाना है. है. क्योंकि बाकी लोग दीदी सीख सकते हैं आपके, वो आप एग्जाम्पलरी बन सकते हैं बाकी लोगों के लिए. हाँ ठीक है.
आप लोग पूछो. Bhakti 500. हैं? भक्ति 500. Okay. What is आरोप सिद्धा भक्ति and संग सिद्धा भक्ति? आरोप सिद्धा भक्ति किसे कहते हैं और संग सिद्धा भक्ति किसे कहते हैं? दीदी, आरोह भक्ति परिपूर्ण भक्ति होने पर होती है. हैं? आरोह भक्ति परिपूर्ण भक्ति होने पर होती है और संग भक्ति महापुरुष के आदेश अनुसार उनके छत्र छाया में रह के उनके संग में रहे. नहीं, गलत. हाँ बोलो. राधे राधे. आरोप सिद्धा भक्ति जो सिर्फ इंद्रियों से होती है, मन से नहीं, और संग सिद्धा भक्ति जो इंद्रियों से और मन से दोनों से. गलत. दो भक्ति जो दो प्रकार की होती है, एक आरोप सिद्धा और एक संग सिद्धा. आरोप सिद्धा भक्ति उसे कहते हैं जिसमें कर्म और ज्ञान को भी लेकर चला जाता है. भक्ति में ज्ञान कर्माद्यनावृतम ऐसा कहा गया है कि ज्ञान और कर्म भक्ति में नहीं होना चाहिए. प्योर भक्ति होनी चाहिए. उसमें ज्ञान के नियम या कर्म के नियम लागू ना हो कि इस प्रकार से भक्ति आरती करनी है तो ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो. पूजा करनी फिर ऐसे करो, ऐसे करो. इतने बजे उठ के फिर नहाओ, फिर ये करो. ये कर्म का आरोपण जिसमें ना हो, कर्म या ज्ञान के नियम जिसमें लागू ना होते हो, जिसमें लागू होते हो, उसे आरोप सिद्धा भक्ति कहते हैं. और जिसमें केवल मन का अटैचमेंट के साथ में हृदय के से जो भक्ति की जाती है उसको संग सिद्धा भक्ति कहते हैं. दीदी, तो स्वरूप सिद्धा भक्ति क्या होती है? स्वरूप सिद्धा भक्ति जो वो भी उसी से मिलता जुलता है कि स्वरूप सिद्धा भक्ति उसे कहते हैं जो कि प्योर भक्ति हो, उसको स्वरूप सिद्धा भक्ति कहते हैं, प्योर भक्ति को. नेक्स्ट. किसका टर्न? गुरु 400. दिया प्रेमरस मदिरा से पूछ सकते हैं अभी. अभी एक मिनट, इतना भी क्या धैर्य रखो थोड़ा सा. गुरु कितना? 400. गुरु 400. Who is greater, Guru or God, and why? हाँ. Eh? Both are one. There is since both are one, there is nobody greater or lesser. But for फिर भी us, गुरु. for our own betterment, Guru is greater. Yeah. Right. तुम लोग का एक क्वेश्चन तो सही है. अब ये आप लोग प्रेम रस मंदिरा पर भी पूछ सकते हैं. Prem Ras Madira 500. 500. Link of the pulse from 1 to 8 madhuris. Link of 1 to 8 madhuris of Prem Ras Madira. क्या लिंक है उसमें? पहली माधुरी, दूसरी माधुरी, तीसरी माधुरी. चीटिंग मत करना, देखना मत कहीं पर. आप लोग बोल रहे हो कि नहीं, बता रहे हो कि नहीं? 1, 2, 3, 5, 6 है. आरती माधुरी पहले. आरती माधुरी.
बस हो गया 8। ऐसे नहीं कि एक ये बताएगा दूसरा ये गलत है, 0 नंबर। तुम लोग बोलो, हैं? एक व्यक्ति बोलो, ठीक से बोलो, खड़े हो के बोलो। आरती माधुरी के बाद सिद्धांत माधुरी, सिद्धांत के बाद दैन्य माधुरी, के बाद धाम माधुरी, उसके बाद बाल कृष्ण और बाल राधा माधुरी। दैन्य माधुरी कहाँ खा गए? दैन्य बोला दैन्य बाद में बोलोगे इन सब के? सिद्धांत के बाद दैन्य बोला। नहीं बोला? चलो ठीक है फिर, ठीक है फिर। अगर तूने बोला था, मैंने तो नहीं सुना। That's right then. Next. और कोई? अब आप लोगों का टर्न है। आरती तो अलग ही बैठ गई। बोलो आप लोग, जल्दी बोलो, कौन सा आपको लेना है? Madhura 400. हैं? Madhira 400. देखो सखी स्वामिनी को श्रृंगार। इट बिलोंग्स टू विच माधुरी? हैं? ऐसे ठीक से बोलो, माइक लेके बोलो। ऐसे एक ये बोले, एक वो बोले, ये मुझे पसंद नहीं है, गलत है। हैं? Radha Madhuri. रॉन्ग। आप लोग बोलिए। हैं? रॉन्ग। ये निकुंज माधुरी का पद है। देखो सखी स्वामिनी को श्रृंगार। नेक्स्ट, आप लोगों का टर्न है। ज्ञान 500। हैं? ज्ञान 500। ज्ञान पहली बार चुना गया ज्ञान को। व्हाट इज निर्विकल्प समाधि? बहुत बार सुना है आप लोगों ने हमसे। Ten, 9, 8, 7, है? ज्ञानी वाले तो बहुत सारी समाधियां होती हैं, खाली एक निर्विकल्प समाधि थोड़ी होती है। हम निर्विकल्प पूछ रहे हैं, निर्विकल्प समाधि किसे कहते हैं? रॉन्ग। तुम लोग बोलो। Ten, 9, 8, 7. निर्विकल्प समाधि में मन नहीं होता, जिस समाधि होती है अंतःकरण के लीन होने पर जो समाधि होती है। This is not the right answer. निर्विकल्प, हाँ, वैसे भी अब तुम लोग का चांस जा चुका है। निर्विकल्प समाधि उसे कहते हैं जब किसी ज्ञानी को ब्रह्मानंद प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म का ज्ञान जब उसे प्राप्त हो जाता है, उसके बाद वो भगवान के ध्यान में लीन हो जाता है और उसकी सारी इंद्रियां जो हैं वो माया के लिए शून्य हो जाती हैं। किसी भी माया का कोई विषय जब उसके अंतःकरण में प्रवेश कर ही नहीं सकता, तब वो हजारों वर्ष तक निर्विकल्प समाधि में रहता है। कोई भी और विचार, कोई कामना कुछ आ ही नहीं सकती उस समय, क्योंकि सभी इंद्रियां उसके बाद से वो संसार के विषयों के लिए शून्य हो जाती हैं। ऐसे ही जो परमहंस हैं, वो जब देखते हैं भगवान को,
तो फिर वो भूल जाते हैं अपने निर्विकल्प समाधि को, क्योंकि जिसका वो ध्यान करके समाधि में चले जाते हैं उन्हें संसार का ज्ञान नहीं रहता। उसको जब वो साक्षात देते हैं उसका अनंत रूप अनंत गुण, तो अपनी समाधि को भूल जाते हैं, वो उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। नेक्स्ट आप लोग, नहीं हमारा तुम लोग का है, बोलो। प्रेम रस मदिरा 200। प्रेम रस मदिरा, अच्छा सॉरी, दूसरा देख लिया, हाँ निकल गया। 200 ना। छुओ जनि कान है मान लो बात, ये किस माधुरी का है? मान माधुरी। नहीं? राहू, तुम लोग बोलो। दोबारा बोलिए दीदी पद का नाम। हैं? दोबारा बोलिए पद का नाम। क्या? पद का नाम। वो जो अभी बोला आपने दीदी लिरिक्स। पद की लाइन फिर से बोलिए। छुओ जनि कान मान लो बात। हैं? प्रकीर्ण माधुरी। रसिया? प्रकीर्ण। नहीं, इट इज फ्रॉम लीला माधुरी। नेक्स्ट, आप लोग का टर्न है ना? महाराज जी 400। हैं? महाराज जी 400। महाराज जी 400। What is the level of Sri Maharaj Ji amongst the saints? बहुत स्तर के सेंट्स होते हैं, महाराज जी का कौन सा लेवल है? रसिक शिरोमणि। हाँ, आप लोगों का टर्न है। महाराज जी 200। हैं? महाराज जी 200। महाराज जी 200, ये हो तो नहीं गया ना? कोई 3 कारण बताओ why Maharaj Ji is called Jagat Guru Tam. Tell me 3 reasons, solid reasons. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. एक तो उनके अष्ट सात्विक हैं? भाव, महाराज जी के अष्ट सात्विक भाव जो दिखते थे, जो हाईएस्ट भाव होते हैं वो महाराज जी में दिखते थे। उनको जो पदवी मिली थी भक्ति योग रसावतार। हम भक्ति और रसावतार का कब पूछ रहे हैं? हम तो पूछ रहे हैं जगत गुरु उत्तम वो क्यों कहलाते, तुम बता रही हो भक्ति और रसावतार क्यों टाइटल्स कहलाते मिले हैं? हैं दीदी। Wrong, आप लोग बोलो। दीदी अभी बोल रहे वो दीदी उन्होंने रिकंसाइल की ना सभी जगत गुरुओं की फिलॉसफी को रिकंसाइल किया। अभी हम बोल रहे हैं भैया, अभी खत्म तो हम ये रूल बना था। चलो अभी बना दे दोबारा से। दीदी अंपायर की डिसीजन पे आओ। आप एक रीजन हो गया बस। आप लोग बोलो, अगर 3 रीजन पता है तो बोलो, नहीं तो मत बोलना। एक तो राधे नाम का प्रचार पूरे वर्ल्ड वाइड किया जो पहले कभी किसी जगत गुरु ने नहीं किया, नंबर 1। दूसरा, बिना डिबेट किए
उनको जगत गुरु का टाइटल मिला, कोई दिव्य शास्त्रार्थ नहीं हुआ। और तीसरा, सबकी फिलॉसफी को रिकंसाइल करके उन्होंने, जैसे हम निखिल दर्शन समन्वयाचार्य की परिभाषा जैसे आपने बताई, उस हिसाब से जगत गुरुत्तम की उपाधि से नवाजित किया गया उनको। नहीं, पूर्णतया सही नहीं है तुम्हारा आंसर, आंशिक रूप से सही है। राधे नाम का प्रचार किया इसलिए वो जगत गुरु उत्तम कहलाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड में राधे नाम का प्रचार किया और लोगों का सीमित था प्रचार, इसलिए केवल जगत गुरु वो नहीं कहलाते कि उनको सारे शास्त्र वेदों का ज्ञान है। जगत गुरु उत्तम वो इसलिए कहलाते हैं कि जितने भी जगत गुरु उत्तम जगत गुरु अभी तक हुए हैं, उन सब की फिलॉसफी का उन्हें ज्ञान भी है। बाकी जितने भी अभी तक जगत गुरु हुए वो केवल एक एक फिलॉसफी के मास्टर थे, किसी को सारी फिलॉसफी का ज्ञान नहीं था। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने केवल अद्वैतवाद की फिलॉसफी का ही जाना, उसका ही प्रचार किया। निम्बारकाचार्य जी ने द्वैतवाद का ही प्रचार किया, उनकी ही नॉलेज थी। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत का ही प्रचार किया। माधवाचार्य ने द्वैत का ही प्रचार किया। महाराज जी को इन सब की थॉरो नॉलेज प्लस इन सब को ये सिद्ध किया कि ये सही है, इनकी फिलॉसफी भी सही है, इनकी फिलॉसफी भी सही, सिद्ध किया। ये कैसे सही है उसको सिद्ध किया उन्होंने, और फिर अपना मत उसी में से निकाल के उन सब फिलॉसफी को रिकंसाइल करके अपना मत रखा कि ये इन सब का ये अर्थ है, सारे जगत गुरुओं का ये कहना है। एक बात। दूसरी बात कि उनका ज्ञान इतना अथाह था कि 500 विद्वान आए थे वहां पर। तीसरे चौथे दिन तक सुना उन्होंने, और तभी उन्होंने ये मान लिया कि ये ज्ञान किसी मनुष्य का हो ही नहीं सकता। हम शास्त्रार्थ कर सकते हैं, कोई मनुष्य आ जाए सामने, ये अर्जित ज्ञान नहीं है इनका। दिस इज नॉट द अर्न नॉलेज, it is the knowledge which is coming from inside. And the knowledge says, because महाराज जी को सारे शास्त्र, ये लोग जितने विद्वान आए थे एक एक शास्त्र के विद्वान थे, तो भी वो बिना पुस्तक रखे सामने नहीं बोल सकते थे, सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते थे, अपने ही ग्रंथ का उत्तर भी नहीं दे सकते थे, अपने ही जिसमें वो रिसर्च कर रहे थे उसमें ही वो कंफ्यूज्ड थे, उनको कुछ भी क्लियर नहीं था। और श्री महाराज जी ने सारे दर्शनों को क्लियर किया, 1 2 3 स्पीच में ही कर दिया। और ये मान गए वो लोग कि इनको सारे शास्त्र वेद कंठस्थ हैं और इनको थॉरो नॉलेज है। जिस विषय को लेकर अभी तक हम लोग इतना वाद विवाद कर रहे थे, हमको समझ में नहीं आ रहा था इसका क्या अर्थ है, इनको उन्होंने यूं चुटकियों में समझा दिया। तो सारे शास्त्र वेदों का कंठस्थ है उनको ज्ञान, और ऐसा पॉसिबल है नहीं एक मनुष्य जीवन में, तो क्या 1000 जीवन में भी इतना ज्ञान अर्जित करना पॉसिबल है नहीं। इसलिए उनको दिया गया जगत गुरु उत्तम की उपाधि। और तीसरी बात ये कि जो शास्त्र वेदों के प्रणेता हैं, ये 6 शास्त्र होते हैं, इन सब के जो प्रकट करने वाले हैं, उनसे भी उन सभी 6 शास्त्रों का सम्यक ज्ञान महाराज जी को है। ऐसा लगता है जैसे उनसे इन लोगों ने ज्ञान को प्राप्त किया हो। पारावारीण कहा गया उनको। निखिल दर्शन वो श्रीमद् पद वाक्य प्रमाण पारावारीण कहा गया उनको, कि ये सब जो 6 हैं इन्होंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया है। ये बातें सिद्ध हो गई उनके 4 लेक्चर के बाद ही, इसलिए उनको जगत गुरु उत्तम की उपाधि दी गई। ये भी यद्यपि पहली बार हुआ कि बिना शास्त्रार्थ के ही उनको जगत गुरु उत्तम की उपाधि दे दी गई, ये पहली बार हुआ। लेकिन ये कारण नहीं था जगत गुरु उत्तम की उपाधि देने का।
जगत गुरु उत्तम के ये ऐसा पहली बार उनके लाइफ में हुआ जो और किसी की लाइफ में नहीं हुआ। वो समुद्र पार करके विदेश में आए, ये भी पहली बार हुआ। कोई जगत गुरु और नहीं आया समुद्र पार करके। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पहली बार हुई, लेकिन जगत गुरु उत्तम जो उनको कहा गया, इसलिए एक बहुत और बड़ा कारण है कि जितने भी जगत गुरु अभी तक हुए ये सब भगवान के अवतार थे। जैसे शंकराचार्य जी भगवान शंकर के अवतार थे, निम्बारकाचार्य जी ये सुदर्शन चक्र के अवतार थे, रामानुजाचार्य जी शेषनाग के अवतार थे, माधवाचार्य जी पवन के अवतार थे। ये सब अवतार थे और महाराज जी को इन लोगों ने सिद्ध किया है कि वो अवतार ही थे, वो अवतार नहीं थे। उन्हीं के ये सब अवतार थे। ये महाराज जी को जो भक्ति और अवतार की उपाधि मिली और निखिल दर्शन सन्मयाचार्य की उपाधि मिली, पारावार, ये सब उपाधियां ये सिद्ध करती हैं कि वो स्वयं श्री कृष्ण थे। तो चारों जगत गुरुओं के ऊपर हैं वो, इसलिए उनको जगत गुरु उत्तम की उपाधि दी गई। ये रीजन है। और कोई बचे हैं? अभी हो गए? कौन से? अब किसका टर्न है? तुम लोग का ना? तुम लोग का है, बोलो। भक्ति 400 है भक्ति 400 भक्ति 400। The hallmarks of bhakti as an exclusive path of God realization. भगवत प्राप्ति का ही ये एकमात्र साधन है। इसके क्या प्रमाण हैं कि भक्ति ही भगवत प्राप्ति का साधन है? पता है तो बोलना, नहीं तो अपना चांस मत खराब करना। है चांस तो हमारा है ही है, कोशिश करना हमारा फर्ज है। कर्म देख दीदी, कर्म जो है उसका फल जो है वो स्वर्ग लोक तक। नहीं नहीं नहीं, वो प्रमाण बताओ जिससे ये सिद्ध होता है भक्ति ही भक्ति ही एकमात्र साधन है। भक्ति का फल नश्वर नहीं होता दीदी कभी, और बनी रहती है। तो कर्म और बाकी सब, कर्म और ज्ञान के अंदर में वो दोनों बात में लिमिटेशंस है। भक्ति नहीं, ये आंसर नहीं है सही। अन्वय अन्वय का क्या मतलब है? उससे लक्ष्य मिलेगा। हाँ, और ये सलाह करके नहीं उसके- बोलो, एक जने उसके बोलो, और बिना- ये नहीं कि पूछ पूछ के आपस में बोलो। उसके बिना लक्ष्य नहीं मिलेगा। सब लोग भक्ति कर सकते हैं, सदा के लिए हो। फिर सलाह लेने लगी, अपने आप बोलना है और तुम। किसी और साधन की आवश्यकता नहीं है, किसी और की अपेक्षा नहीं रखती। 4 ही तो हुए। 5 हो गए दीदी। सबके तुमने सबके लिए एक हो। बोलते बोलते बीच में तुमने दूसरा ले लिया था। ओहो, ओके। इससे लक्ष्य की प्राप्ति हो, इसके बिना लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, सब लोग कर सकें, सदा के लिए हो, और किसी और पद साधन की अपेक्षा ना हो। हाँ। राइट। और नेक्स्ट किसका है? तुम लोग का। ज्ञान 400। ज्ञान 400। What is the ultimate result of ज्ञान?
ज्ञान का हमें अधिक से अधिक क्या फल मिलता है? ज्ञान का फल क्या है? हाँ अज्ञान मिट जाता है और आत्मज्ञान हो जाता है। हाँ। नेक्स्ट आप लोगों का चांस गुरु 200, है। गुरु 200, गुरु 200। What is the best way of pleasing Guru? बोलिए, आप लोगों का चांस है। बेस्ट वे ऑफ प्लीजिंग गुरु। उनकी आज्ञा का पालन करो। यस। आप लोगों का चांस है। कर्म 500। ये जो कर्म है वेदों में जो बताए गए हैं, जिसको कर्म कहते हैं वेद के अनुसार, वो कितने प्रकार के हैं? 3। हाथ खड़ा करो, ढंग से बोलो, ऐसे नहीं बीच में कोई बोल देगा कुछ, कोई बोल देगा कुछ। वेदों के अनुसार कर्म कितने प्रकार के हैं? 3। कौन कौन से? संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। नहीं, कर्म वेद के अनुसार कर्म कितने प्रकार के होते हैं? ओह, ऐसे अकर्म विकर्म वो वाला। बुचौली बिछा रही हो क्या? विकर्म, अकर्म। हम पूछ रहे हैं वेद के अनुसार कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 ही है दीदी, पर दीदी 3 प्रकार के कर्म, अकर्म, जो विकर्म। वैदिक कर्म होते हैं, ये अकर्म वैदिक कर्म नहीं होता। जो वैदिक कर्म है वो कितने प्रकार के हैं? तभी 3 ही है। ये तुम क्या देख रही हो उसमें? चालाकी। आप लोग बोलो। है? नो, रॉन्ग। चलो। ठीक, सारे नहीं याद है, लेकिन प्रायश्चित कर्म, नित्य कर्म, और हो। फल 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 के लिए जो कर्म किए जाते हैं, पुत्र वेष्टि वगैरह। कर्म 4 प्रकार के होते हैं वैदिक: नित्य, नैमित्तिक, काम्य एंड प्रायश्चित। नित्य कर्म जो रोज करने ही पड़ते हैं, जैसे ब्राह्मण को रोज उठना ही है, सवेरे 4 बजे उठ के वेदों का पठन पाठन करना ही है, ये नित्य कर्म है। क्षत्रिय को शस्त्रों की, ब्राह्मणों को शास्त्रों की, क्षत्रियों को शस्त्रों का नित्य अभ्यास करना ही है, ये उसका नित्य कर्म है। वैश्य को व्यापार संबंधी कर्म करना ही है, ये उसका नित्य कर्म है। शूद्रों को इन सब की रोज सहायता करनी है, ये उसका नित्य कर्म है। इसी तरह नैमित्तिक कर्म, जब हम किसी खास कारण से कोई करते हैं कर्म, जैसे आपसे कोई पाप हो गया, किसी जानवर की हत्या हो गई, ब्राह्मण की हत्या हो गई, तो उसके लिए जो वेदों में बताया गया कि ऐसे ऐसे अनुष्ठान करो तो तुम इस पाप से छुट्टी पा जाओगे, तो उसके लिए जो कर्म किए जाते हैं, यज्ञ वगैरह बताए गए हैं वेदों में,
उसे करना वो नैमित्तिक कर्म है, काम्य कर्म। जब हम किसी कामना, सांसारिक कामना की पूर्ति के लिए कोई कर्म करते हैं, जैसे किसी को पुत्र चाहिए, तो पुत्र के लिए पाने के लिए क्या यज्ञ करना पड़ेगा, जैसे जनक जी वगैरह ने किए यज्ञ पुत्र की प्राप्ति के लिए, दशरथ जी ने किया पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति के लिए, तो वो काम्य कर्म कहलाते हैं। किसी कामना से जब किए जाते हैं तो वेदों में लिखा है कि अगर तुम्हारी ये सांसारिक कामना है तो ये यज्ञ करो, ये अनुष्ठान करो, तो तुम्हें तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। और प्रायश्चित कर्म उसे कहते हैं, अगर कोई मिस्टेक हो गई है तुमसे, कोई तुमने यज्ञ किया, कोई पूजा किया, कोई भी तुमने अनुष्ठान किया, उसमें तुमसे कोई मिस्टेक हो गई, तो उस मिस्टेक को हटाने के लिए, उससे वो छुटकारा पाने के लिए जो कर्म किया जाता है उसे प्रायश्चित कर्म कहते हैं। ये कितनी बार आप लोगों ने सुना होगा, कम से कम 100 बार सुना होगा हमसे आप लोगों ने, और इन्होंने तो लिखा भी है। लेकिन ध्यान इससे पता चलता है आप लोग ध्यान नहीं देते फिलॉसफी पे। और श्री महाराज जी ने बहुत जोर दे के ये बात कही है कि फिलॉसफी पर ध्यान देना, जब तक फिलॉसफी स्ट्रांग नहीं होगी तब तक पतन की हमेशा संभावना है। हमें इम्पोर्टेंस समझ में आएगी नहीं भक्ति वगैरह की, महापुरुष की उपस्थिति वगैरह की, किसी भी चीज़ की। बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए फिलॉसफी। इसीलिए मैं हर रिट्रीट में क्वेश्चन आंसर भी रखती हूँ, और ये जेपर्डी या क्वेश्चन आंसर ऐसा करके कुछ क्विज वगैरह रखती हूँ कि आप लोग इसी बहाने फिलॉसफी तैयार करके आए। ये आप लोग भूल जाते हैं। अभी कोई और क्वेश्चन बचा है? हैं? बोलो क्या? Madira 100. बंद हो जाता है। नंबर ऑफ पद्स इन धाम माधुरी है? या अब आप लोगों का टर्न है। भक्ति 100। Three methods of Kirtan. Methods of Kirtan. हाँ, नेक्स्ट आप लोग। महाराज जी 100। Which year did he receive the title of Jagat Guru Uttam? The easiest question. Eh? Yeah. अब आप लोगों का टर्न। गुरु 100। What is the undisputable sign of real Guru? वो कौन सा साइन है जो बिना किसी संदेह के आप जान सकते हैं कि ये वास्तविक संत है? हैं?
और कोई वैसे आधा वो बोलो, आधा संजय, फिर आधा बोलो, सब बहुत सारे लोग हो यहाँ तो आप लोग। एक जने बोलो, बोलना क्या चाहते हो ढंग से बोलो। ठीक से बोलो जिसको बोलना है, एक व्यक्ति। दीदी जो जो भाई उसमें ऑन नहीं है ये। दीदी अच्छा बोल दो, जल्दी करो। बोलो, घंटा भर नाटक नहीं करो। दीदी जिनके जो संसारी वस्तु नहीं देता, जिनके पास जाके संसार में वैराग और भगवान में अनुराग बढ़ता। हाँ, नेक्स्ट। What is the ultimate reward of the path of karma? Yes. Next. ज्ञान 100? नो नो, अभी नहीं हुआ। Names of 3 ज्ञानीज who attained प्रेमानंद। ऐसे 3 ज्ञानियों के नाम बताओ जिनको प्रेमानंद की प्राप्ति हुई हो। जनक, सुखदेव और उद्धव। हाँ, अभी और बचे अभी। ज्ञान 200। What is Brahma Bhuta Avastha of a Jnani? Brahma Bhut Avastha, the state of Brahma Bhut. है? सब जगह वो अपने आप को ही देखता है। Wrong. तुम लोग इधर आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। न शोचती न कांक्षती, उनको शौक नहीं होता किसी भी बात का। और नहीं, कुछ लक्षण है। मैं पूछने में मैं पूछ रही हूँ कि व्हाट इज ब्रह्म भूतावस्था? व्हाट इज ब्रह्म भूतावस्था? ब्रह्म ज्ञान हो गया है, लेकिन अभी शरीर धारण किया हुआ है। नहीं, और नहीं। सब जगह अपने को देखता ब्रह्म है। भूतावस्था का मतलब ये होता है कि वो तामसी और राजसी माया से ऊपर उठ गया है, किंतु अभी सात्विक माया है। उसको कहते हैं ब्रह्म भूतावस्था। यानी स्वरूपावरिका माया चली गई, गुणावरिका माया है। इसका नाम है ब्रह्म भूतावस्था। और इसका लक्षण है ये कि न शोचती न कांक्षती। जो ब्रह्म भूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसका लक्षण ये है कि वो उसको किसी बात से, क्योंकि अब वो स्वरूपावरिका माया से परे हो चुका है, उसे पता चल गया संसार में कहीं सुख है ही नहीं, अंदर से पता चल गया उसको। तो वो क्यों उसकी चाह करेगा, क्यों वो डिज़ायर करेगा किसी भी सांसारिक चीज़ की? तो क्यों उसे दुख होगा? न इच्छा पूरी होने की आशंका, ना पूरी होने की, तो कोई सुख दुख होगा ही नहीं उसे। ये तो उसके लक्षण हैं। ब्रह्म भूतावस्था माने होता है जिसने स्वरूपावरिका माया को क्रॉस कर लिया हो। और नेक्स्ट तुम लोग का है कर्म 400। How an action turns into प्रारब्ध। आपका कोई कर्म प्रारब्ध में कैसे बदल जाता है?
क्रियमाण कर्म का तुरंत फल मिल जाता है, उसमें से सारे जो संचित कर्म हैं उनमें से कुछ फल इस जीवन में भोग के लिए भगवान देते हैं, वो प्रारब्ध कहलाते हैं, वो प्रारब्ध वैसे बनते हैं। जो इस जन्म में भोग के लिए देते हैं पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार। हाँ, एक्चुअली इसका आंसर यूं दे, उल्टा बोल रही हो तुम। इसका आंसर ये होता है कि हम जो भी कर्म करते हैं दिन रात, वो क्रियमाण कर्म होता है। उसे कुछ ही ऐसे कर्म हैं जिनका फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है, बाकी सब रह जाते हैं। जो रह जाते हैं अगले जन्मों में भोगने के लिए, उन्हें प्रारब्ध कहते हैं। वही संचित कर्म से तो बनते हैं प्रारब्ध। संचित कर्म जो है वो प्रारब्ध में परिणित हो जाते हैं। अभी रुक जाओ, अभी बाकी है कि सब हो गए पूरे? तो किसके आंसर ज्यादा हैं? हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ये लोग तो आंसर ज्यादा दे रहे थे। हैं? दोनों पार्टीज के 21 रुक जाओ भाई, दोनों पार्टीज के 2100 पॉइंट्स हैं। गर्ल्स ने 7 क्वेश्चन सही आंसर दिए हैं, बॉयज ने 8 क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है। क्या? गर्ल्स ने 7 क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है, बॉयज ने 8 क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है। दोनों के नो नेगेटिव मार्किंग, सिर्फ पॉजिटिव मार्किंग। 2100 पॉइंट्स दोनों के हैं। लेकिन सबसे सही आंसर, ज्यादा आंसर केवल जयराज के आए, इसलिए ही इज द फर्स्ट। नाउ व्हाट्स द टाइम ऑफ व्हाट? क्या बजा क्या है? इसमें खुल जाएगा यहाँ?